इन प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डाइटरी असेसमेंट और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अगर एफएक्यू की बात करते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फूड डायरीज क्या है, उसमें उसकी ड्यूरेशन क्या है, सबके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब इसी तरह फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रिएंट इनटेक और ऑफ अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स फॉर द सर्टेन पीरियड, इसमें हम लोग फूड डायरीज यूज करते हैं और 24 और रिकॉल यूज करते हैं। In case estimation of mean dietary or nutrient intake in larger population, repeated food diaries or 24-hour recall are used. But in case estimation of actual nutrient intake of a person or small groups है, उसमें हम repetition नहीं उनकी करेंगे। In case of estimation of mean intake of certain food items, like in estimation of mean dietary or nutrient intake in larger population है, but उसमें हमने specified नहीं किया किसी food group को, but in case of estimation of mean intake of certain food item by a small or larger population, then we use food frequency questionnaire. Lab test basically one of the most important parameter in nutritional assessment में होता है, लेकिन in case के अगर nutritional हम screening करते हैं तो उसमें lab test result में भी unavailable होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी time saving है और अगर हम nutritional assessment करते हैं इसमें lab test available होते हैं। Lab test measures level of metabolites to evaluate the body state of health or response to various treatments. Lab tests can provide information about protein, energy balance, micronutrient status, fluid balance, body composition, organ function, and metabolic status. In biochemical assessment, measuring nutritional markers or indicator of organ function which are found in blood, urine, feces, tissue samples. like in lab test में हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, like interpretation of biochemical measurement for diagnosis or medical treatment, disease state, hydration status, और कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, उसका इफेक्ट उसकी लैब वैल्यूज में क्या होगा और इसकी रेंज होगी। अगर वैल्यूज रेंज से ज्यादा होगी या कम होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रेट करते हैं कि पेशेंट की वैल्यूज ये शो कर रही हैं। Various in nutritional evaluation, various biochemical markers are used. In case serum protein is one of the best useful marker for nutritional status. Serum albumin. Serum albumin is basically indicating marker for nutritional evaluation of a patient and long half-life of 21 days. Patient with low serum albumin level basically showing the nutritional status or the poor nutritional status or at high risk of death. Basically, albumin is a protein that are highest concentration in plasma और इन केस अगर इसका लेवल लो होगा वो इंडिकेट करता है कि पर्सन में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है। Pre-albumin and retinol binding protein. Pre-albumin and retinol binding protein level decreases during the PEM protein energy malnutrition or these tests are basically are more sensitive or cost-effective tests of protein status as we compare with albumin और अगर albumin की बात करें वो more expensive है, ठीक है। Pre-albumin is a protein that acts as a transporter for thyroid hormones. Its short half-life 1 to 2 days है, जिसकी वजह से make it sensitive marker है for protein energy nutritional status. And other is retinol binding protein, which is also correlate with protein energy status of a patient. Serum creatinine is used as a nutritional marker or its relation to muscle mass. Measuring serum creatinine is a simple test or most commonly used as an indicator of renal function, like a kidney functioning में, और ये most common indicator है, test है
लाइक अगर किसी पर्सन की किडनी की आपने टेस्ट करना है, उसकी देखना है, असेसमेंट करनी है कि इसके कोई किडनी से रिलेटेड इश्यू है, तो उसमें हम लोग सीरम क्रेटिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर. Serum transferrin is iron transport protein which is served as a sensory marker of total nutritional status or used for iron deficiency. Serum transferrin receptors level is specific or sensitive indicator of tissue iron status and iron deficiency में in case के iron की deficiency है और evaluate करने के लिए iron के status के लिए हम लोग serum transferrin ये वाला मार्कर यूज करते हैं. और बेसिकली अगर हम इसकी कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट करती है प्रोटीन, एनर्जी और आयरन स्टेटस की, क्योंकि हमने पहले बात की है कि ये आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है ये. और अगर हम इसका कंपैरिजन एल्ब्यूमिन के साथ करें और अगर रिड्यूस ट्रांसपेरेंट लेवल और इंडिकेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को करते हैं. Transferrin breakdown in body more rapidly as we compare with albumin is the breakdown. अगर हम उसके साथ कंपैरिजन एल्ब्यूमिन के साथ करें तो ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है. और बेसिकली इसके इन केस के आयरन डेफिशिएंसी इसके लेवल इंक्रीज हो जाएंगे और अगर आयरन स्टेटस इम्प्रूव होता है इन केस तो देन साइमल्टेनियसली इसके लेवल भी लो हो जाएंगे. और बेसिकली अगर हम इसकी कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट करती है प्रोटीन, एनर्जी और आयरन स्टेटस की, क्योंकि हमने पहले बात की है कि ये आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है ये. और अगर हम इसका कंपैरिजन एल्ब्यूमिन के साथ करें और अगर रिड्यूस ट्रांसपेरेंट लेवल और इंडिकेट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को. Transferrin breakdown in body more rapidly as we compare with albumin is the breakdown. Transferrin is a protein that acts as a carrier protein for iron. Half-life 8 days which makes it a sensory marker for recent protein, energy, nutritional status. Like a basis पे like इसकी half-life 8 days है, उसकी बेसिस पे ये सेंसरी मार्कर है और उसकी बेसिस पे देन ये यूज होता है हम असेसमेंट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए रिसेंट प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशनल स्टेटस को. Nutrient also affects lab test. Low blood concentration of a nutrient reflect primary deficiency or secondary deficiency of a single or multiple or several nutrients that involved in transport or metabolism of that nutrient, or nutrient concentration in the blood urine sometimes reflect recent intake. Protein concentration also affected by other physiological changes है, like कोई disease है, stress है, injury है, inflammation है. हम usually use of multiple biochemical measurement markers for nutritional status है और वो more accurate हमें information provide करते हैं. अगर हम किसी भी एक single marker पे कभी भी उसकी basis पे declare नहीं करते किसी भी person का nutritional status को, हम various biochemical मार्कर्स यूज करते हैं. केमिकल असेसमेंट में हम लाइक डिफरेंट टेस्ट करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए, उसके नॉर्मल लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है. अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ये एनीमिया को अगर आइडेंटिफाई करना है या स्टेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए. सेम अगर हम WBC की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की, ये इन्फेक्शन के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंड टोटल लिम्फोसाइट काउंट के लिए. इसी के बाद HCT होता है, हेमाटोक्रिट, और ये भी एनीमिया के लिए यूज हो रहा होता है और ये किसी पर्सन की हाइड्रेशन स्टेटस के लिए, ठीक है. और इसके बाद MCV एंड MCH है, ये बहुत यूज किसके लिए हो रहे हैं, एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और इट्स कॉजेज क्या है उसके लिए यूज हो. इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है एंड क्लोराइड है. सोडियम
टू चेक द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन है, पोटाशियम टू मॉनिटर एसिड बेस बैलेंस है, और किडनी फंक्शनिंग के लिए होता है, ठीक है। और हम लोग इसमें इम्बैलेंस के लिए लाइक, और इसी तरह क्लोराइड की बात करें, ये भी एसिड बेस बैलेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और इन केस के अगर कोई वॉमिटिंग वगैरह है तो उसमें हम इसके लेवल चेक करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जैसे ग्लूकोज की है, ऑब्वियसली हमें पता है कि वो किसके लिए, टू चेक डायबिटीज है, ठीक है। अगर कोई भी पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स वगैरह, हाइपोग्लाइसीमी है, ग्लूकोज की इंटॉलरेंस है, तो उसमें हम लोग ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम टू चेक रेनल फंक्शनिंग, और इन केस अगर प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, कोलेस्ट्रॉल टू असेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है, और इन केस जॉन्डिस है, कार्बन डाइऑक्साइड है टू मॉनिटर एसिड बेस बैलेंस है। सेम सीरम एंजाइम्स है जिसमें सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज है, ये पैंक्रियाटिक फंक्शंस के लिए चेक होता है। इसके बाद एएलटी एएसटी है, ये लिवर एंड हार्ट फंक्शंस के लिए है। इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, वो लिवर फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। एलडीएच है, वो हार्ट एंड रेनल फंक्शन के लिए है। आपको अगर एंजाइम्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है, अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंडिकेटर का, इस मार्कर का मेन रोल ये है, अगर ये डिजीज होगी उसमें हम ये यूज करेंगे। नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री, इसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, आरएफटीज, एलएफटीज, लिपिड प्रोफाइल। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बायोकार्बोनेट है। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, उसमें सीरम इंसुलिन, HbA1c, हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग रैंडम। इन ग्लूकोज में फास्टिंग रैंडम, सीरम इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, HbA1। इन एलएफटीज में हम एएसटी, एएलटी, एल्ब्यूमिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यूरिक एसिड, सीरम आयरन, सीपीके। लिपिड प्रोफाइल में हम लोग एलडीएल, बीएलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, और अगर सीपीसी जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एचबी, एसीटी, टोटल लिम्फोसाइट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और प्लेटलेट्स, इन सबको हम लोग मेजर करते हैं। ब्लड टेस्ट फॉर डिटरमिन न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसमें बहुत आ जाते हैं लाइक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसी तरह फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें हम चेक करते हैं कि इसमें हम क्या डिटरमिन कर रहे हैं। सीरम क्रेटिनिन, बेसिकली बायोकेमिकल मेजरमेंट्स है of concentration of creatinine in serum or in urine, or basically a assessment method of total body muscle mass for person with normal renal function. Basically, muscle mass is a reflection of proper protein nutrition. नाइट्रोजन बैलेंस इज वन ऑफ द बायोकेमिकल मेजरमेंट्स है। बेसिकली इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कंज्यूम with the amount of nitrogen is excreted in a given period of time. इसमें zero nitrogen balance और positive nitrogen and negative nitrogen balance. In case if nitrogen intake is more, then we defined as a positive nitrogen balance। ये किन सिचुएशन में होता है कि टिश्यू ग्रोथ है और ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम एनी इलनेस, इन केसेस में, इन सिचुएशंस में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। in case अगर nitrogen loss is greater than intake, then we define as a negative nitrogen balance। इसमें मेन रीजन है अगर प्रोटीन का इंटेक कम है, उसमें स्ट्रेस है, कोई भी बर्न्स है, इलनेस है, इंजरी है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में है कि रिकवर हो रहा है पर्सन इलनेस से, लेकिन ड्यूरिंग
सर्जरी हुई है, कोई भी इलनेस है, अभी रिकवरी उसकी स्टार्ट नहीं हुई, उसमें हम कहते हैं कि ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है। अगर बैलेंस होगा, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम है, उतनी ही अमाउंट में नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस है। आपको दोनों पता होने चाहिए कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस इन नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, एलएफटीज, लिपिड प्रोफाइल एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें आरएफटीज में बेसिकली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन, इनकी लाइक ये टू टेस्ट है। अगर किसी के भी पर्सन का हमने रेनल फंक्शन टेस्ट है, उनकी रेनल फंक्शनिंग को चेक करना है, तो उसमें हम ये टेस्ट करवाते हैं। Physical examination performed by medical or nursing staff. The dietitian should perform a nutrition-focused physical examination, and the purpose of this examination is to assess the patient for signs and symptoms that are related to malnutrition or specific nutrient deficiencies. Clinical or physical examination, clinical methods for assessing nutritional status and checking signs of deficiency at specific places on the body, sometimes asking the patient whether they have any symptoms that might suggest nutrient deficiency from the patient. Clinical signs of nutrient deficiencies include pallor, skin or edema, goiter, and severe visible wasting. इन केस अगर malnutrition में साइंस यूजली अपीयर होंगे, जैसे हेयर है, स्किन है और डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें माउथ, टंग है। समटाइम क्लिनिकल साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसमें हेड टू नेक, जिसमें हेयर, फेस, आईज, लिप्स, टंग, टीथ एंड गम्स हैं। हेयर में बेसिकली साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन में शाइनी हो, न्यूट्रिशन में डल, ड्राई, थिन, रफ है, ब्राइट, क्लियर। eyes, signs of good nutrition में bright, clear, pink membrane, adjust easily to light. In signs of malnutrition में pale membrane, dryness, night blindness, redness at corners of eyes. In lips, signs of good nutrition में स्मूथ होंगे, पिंक है और ड्राई क्रैक, सोर्स इन द कॉर्नर ऑफ द लिप्स, ये साइंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन है। इसमें लीजन्स हो सकती हैं, रेड हो सकती हैं। In mouth, that is including tongue, teeth and gums. Basically gums smooth, non-bleeding, swelling और पेन नहीं होगी इसमें। इन teeth में basically non-missing, non-overlap, without cavities, tongue deep red, slightly rough surface और normally sense to taste. ये basically signs of good nutrition है। साइंस ऑफ मैलन्यूट्रिशन में टंग स्मूथ होगी, डिक्रीज टेस्ट सेंसेशन और ब्लीडिंग गम्स, स्पॉन्जी होंगे गम्स, इन्फ्लेमेशन होगी। अगर टीथ है बेसिकली कैविटीज हैं, ग्रे स्पॉट हो सकते हैं और एरप्टिंग एबनॉर्मली और मिसिंग होंगे। साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन स्किन, मॉइस्ट, स्मूथ, और साइंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन में ड्राई है, स्केलिंग है और नो फैट लेयर अंडर स्किन है, ब्रूसेस हैं। ये बेसिकली साइंस ऑफ गुड पुअर न्यूट्रिशन है और मेल न्यूट्रिशन है। पुअर वूंड हीलिंग है, रफ होगी और इनकेस अगर ब्रूजिंग है, ब्लीडिंग अंडर स्किन है, वो विटामिन सी एंड के की डेफिशिएंसी हो सकती है।
Pink nail beds, smooth, flexible, and uniform shape. These are the signs of good nutrition. And brittle, rigid, pale nail beds or spoon shape. These are the signs of malnutrition. A normal pulse rate or normal blood pressure, these are the signs of good nutrition in cardiovascular or like abnormal rhythms blood pressure elevated mental confusion edema or these are the signs of malnutrition. Common clinical signs of micronutrient deficiency: calcium, magnesium, selenium, zinc, folic acid, beta carotene, B6, B12, and E. In calcium, rickets, fractures, muscle spasm, magnesium, arrhythmias, seizures, dizziness, weakness. In zinc, loss of taste. In case of folic acid deficiency, increased risk of neural tube defect, elevated homocysteine level, and anemia. In vitamin C deficiency, scurvy, appetite suppressed appetite, digestion problem, or slower healing of cuts, poor wound healing. Low red blood cell count, low white blood cell count, poor appetite, or reduced strength, hair loss, elevated homocysteine level in B6 deficiency. Rickets, risk of fractures are increases, low bone density, and weak bones in case of vitamin D deficiency. Goiter in case of iodine deficiency, tetany, calcium, potassium, sodium deficiency, slow clotting time of blood in vitamin K deficiency, or dermatitis, diarrhea in case of niacin deficiency. In case of the linoleic acid deficiency, eczema or glossitis in folic acid deficiency. Hydration state, fluid retention or dehydration is maybe due to any illness or use of certain medication like in dehydration or fluid retention में two factors हैं. वन इज कि अगर कोई भी ऐसी सर्टन मेडिकेशन का यूज है या किसी डिजीज की वजह से. फ्लूइड रिटेंशन अदर नेम इसका एडीमा है. मेन इसकी कॉजेज या रीजन जिसकी वजह से एडीमा होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, किडनी, लीवर और हार्ट अगर इनकी मेल फंक्शनिंग है, इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी. अब इसके अगर फिजिकल साइंस है, बेसिकली इसमें वेट गेन और swelling of limbs and tight fitting shoes. In dehydration, diarrhea, sweating, fever, excessive urination और skin injuries हैं जिसकी वजह से फ्लूइड का लॉस हो रहा है. ये मेन कॉजेज है डिहाइड्रेशन की. लाइक फ्लूइड रिटेंशन की जैसे उनके साइंस एक्सप्लेन किए हैं आपको. अब इसमें ड्राई स्किन होगी, ड्राई माउथ होगा, अगर यूरिन है वो डार्क कलर का होगा और इसका वॉल्यूम लो होगा. ये बेसिकली साइंस हैं डिहाइड्रेशन के. हाइड्रेशन स्टेट 2 पॉइंट्स उसमें फ्लूइड रिटेंशन एंड डिहाइड्रेशन है. बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन में इसकी मेन रीजन या इसमें किडनी, लिवर, ब्लड वेसल्स अगर इनके फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी. और इसके साइंस में वेट गेन है, स्वेलिंग ऑफ लिम्स है. इन केस डिहाइड्रेशन है उसकी मेन रीजन डायरिया, स्वेटिंग, हॉट वेदर, कोई स्किन इंजरी है या एक्सेसिव यूरिनेशन है. इसके साइंस में ड्राई स्किन है, माउथ है और इसका यूरिन का कलर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम लो होगा.
इन फ्लूइड रिटेंशन और डिहाइड्रेशन, इनका कंपैरिजन बेसिकली डिहाइड्रेशन में वेट लॉस है एंड फ्लूइड रिटेंशन में वेट गेन है। इन डिहाइड्रेशन में यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, इन फ्लूइड रिटेंशन में इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इन डिहाइड्रेशन में बेसिकली अगर इसमें फ्लूइड रिटेंशन की बात करें, इसमें एडिमा एंड असाइटिस, बेसिकली असाइटिस में एब्डोमिनल फ्लूइड रिटेंशन होगी। Different biochemical markers that are used in dehydration, basically different biochemical markers यूज होते हैं इन डिहाइड्रेशन में, जिसमें यूरिन कलर और स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लाज्मा सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन रेशियो। फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिकली असेसमेंट मेथड्स हैं जिसमें इंटरप्रेट करते हैं फिजिकल साइंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। समटाइम फिजिकल साइंस आर नॉन स्पेसिफिक और अनरिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। इन केस अगर क्रैक्ड लिप्स है दैट इज कॉज्ड बाय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी एंड इट इज आल्सो कॉज्ड बाय सनबर्न